students, myself Mahesh Shaike, your physics teacher from Nuclear Academy. In last lecture, we already discussed your Physics 1 syllabus. Now in this lecture, we are going to discuss Physics 2 syllabus, analyze Physics 2 syllabus. So there are total 10 chapters in Physics 2. तो इसमें का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स. ओल्ड सिलेबस में देयर आर 2 चैप्टर्स, वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन. ये दोनों भी चैप्टर को मर्ज किया गया है, फ्यूज किया गया है इस वेव ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर में. सो लेट अस स्टार्ट एनालिसिस ऑफ फर्स्ट चैप्टर वेव ऑप्टिक्स. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ लाइट, whether it is corpuscular, wave or dual nature, wave and particle. Okay, so after that we are going to discuss Huygens principle which is related to propagation of light. ठीक है, so उसी के अंदर 2 डेरिवेशन हमें डिस्कस करने. तो उसमें का फर्स्ट डेरिवेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट द प्लेन सरफेस and refraction of light at the plane surface using Huygens principle. So the last section of this particular chapter is related to phenomena of light like polarization, interference and diffraction in detail. Okay, so this is about your first chapter. Now let us discuss second chapter, that is electrostatics. Okay, so in this chapter we are going to discuss about applications of Gauss law. एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में आपने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा है. अभी ये चैप्टर में हम एप्लीकेशंस पढ़ने वाले. देन वी डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्विपोटेंशियल सरफेस, मींस ओवर द सरफेस एट एनी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम. ओके, देन वी डिस्कस अबाउट कैपेसिटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स in series and parallel. Okay, so this is about we are going to discuss. Then Van de Graaff generator, उसका working principle, construction discuss करने जा रहे. With the help of this Van de Graaff generator we are going to produce charge particle, high energy charge particle. Okay, so in this way this chapter is over. Now let us start next chapter, that is current electricity. Now in this chapter we are going to discuss Kirchhoff's law. फर्स्ट लॉ मीन्स देर आर टोटल 2 लॉज. फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ का, किरचॉफ करंट लॉ, देन किरचॉफ वोल्टेज लॉ वी हैव टू डिस्कस. दोनों भी लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं. उसके एप्लीकेशंस भी देखने वाले हैं. उसके बाद में व्हिटस्टोन्स मीटर ब्रिज, यूज ऑफ व्हिटस्टोन्स मीटर ब्रिज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, ये पॉइंट देखने वाले. इसमें 3-4 एक्सपेरिमेंट है, वो सारे एक्सपेरिमेंट हम प्रैक्टिकल में लैबोरेटरी में परफॉर्म करने वाले. Remember one thing. We are after that we are going to discuss potentiometer, use of potentiometer to compare the EMF of 2 cells. Okay, after that use of potentiometer to find the internal resistance of the cell. Okay, so last point of this chapter is galvanometer, how galvanometer acts as a voltmeter and ammeter, that we are going to discuss. So this is your third chapter. Now let us discuss about fourth chapter of part 2, magnetic field due to electric current. Okay, so in this chapter initially we are going to discuss cyclotron. What is cyclotron? Cyclotron as a charged particle accelerator, positively charged particle accelerator है. Then we are going to discuss magnetic force, magnetic force on a straight wire or any arbitrary straight wire कैरिंग करंट. ओके, तो ये डेरिवेशन है वो देखने वाले हम. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम उसका यूज एज ए एनालॉग वोल्टमीटर और एनालॉग एमीटर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एम्पियर्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे. बोथ द लॉज आर यूजफुल टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट. And also we are going to discuss the applications of those laws. Okay, so in this way this chapter is over. Now let us start next chapter, that is magnetic materials. So in this chapter we are going to discuss initially torque acting on magnetic dipole in uniform magnetic field. Okay, so एक derivation है. Then we have to discuss about magnetic movement of electron revolving around the nucleus of an atom. ये derivation से हमें
ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है, ये डेरिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें हमें डिस्कस करना है डायमैग्नेटिक मटेरियल विच आर weakly repelled by magnet, then paramagnetic material which are weakly attracted by magnet, then ferromagnetic material which are strongly attracted by magnet, and its properties। ये तीनों भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमें देखना है। एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी आर टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो उसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड मैग्नेटिक शील्डिंग इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देन इन दिस वे दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इसका एग्जैक्टली रिवर्स इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इसमें हमें देखना है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है कॉइल में, तो वहां पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। एग्जैक्टली रिवर्स इफेक्ट है इसमें देखना है हमें। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वी आर टू डिस्कस फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देयर आर 2 लॉज, ओके, वो भी हमें डिस्कस करने। देन वी आर टू डिस्कस अबाउट लेंज लॉ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, उसके बारे में डिस्कस करना है। जनरेटर के बारे में अभी हमें डिस्कस करना है। एडी करंट के बारे में भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है, जो हम इलेक्ट्रिक ब्रेक्स या स्पीडोमीटर में यूज करते, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देन वी आर टू डिस्कस अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ये क्या प्रॉपर्टीज है, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना, सो दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। देन at the end of this chapter we are to discuss about transformer. The transformer based on the principle of mutual induction, and it is used to convert low AC voltage to high AC voltage, or high AC voltage to low AC voltage. So that is your electromagnetic induction. Now next chapter is AC circuit. Now abhi old syllabus में electromagnetic induction and AC circuit are fused together. ठीक है, अभी ये न्यू सिलेबस में वो सेपरेट है। तो अभी लेट अस डिस्कस अबाउट एसी सर्किट, न्यू चैप्टर। तो अभी इस चैप्टर में हम एसी जनरेटर के बारे में इनिशियली डिस्कस करने वाले। उसका ईएमएफ का वैल्यू कितना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके अंडर सबसे पहला टाइप है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए resistor circuit. ठीक है, when AC voltage applied to resistor circuit, how EMF and current are in the same phase, that we have to discuss. Then next point है AC voltage applied to inductor circuit. In this case, how EMF leads current, that we have to discuss. And whatever the opposition created by that circuit, that is known as inductive reactance. That also we are going to discuss. Then after that, AC voltage applied to capacitor circuit. In this case, how current leads EMF, that we have to discuss in detail. And here, whatever the opposition created by circuit, that is known as capacitive reactance. Okay. After that, we are going to connect inductor, capacitor and resistor in series with each other and applying AC voltage. Then what will happen? What is your total पोजिशन दैट, दैट इज नोन एज इम्पीडेंस। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन भी उसके अंदर हम देखने वाले। देन सबसे लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, उसके वापस 2 टाइप्स है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड इट एक्ट्स एज ए एक्सेप्टर सर्किट। देन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एक्ट्स एज ए रिजेक्टर सर्किट। सो दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। देन नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट चैप्टर है ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखने जा रहे व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। इट गिव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर टू डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देन we have to discuss about
फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी कैसे फेल हुए टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हमें डिस्कस करना है. आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट आइंस्टाइन postulate of quantization of energy. Then also we have to discuss about photoelectric equation, Einstein photoelectric equation. ठीक है, तो ये सब होने के बाद we have to discuss about wave particle duality. That means electromagnetic wave, electromagnetic radiation is dual in nature. That we have to discuss. Photo cell हमें डिस्कस करना है, which converts solar energy into electrical energy. उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. Then last point है इस चैप्टर का Davison and Germer experiment. So this is the first experiment which gives the experimental proof of wave nature of electron. So this is very important experiment. ठीक है. So after that we have to discuss about structure of atom and nuclei. New chapter. Okay. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें डिस्कस करना है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है. उसके बाद में गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल यूज करना है, डिस्कस करना है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड प्रपोज एन एटॉमिक मॉडल एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट बोस एटॉमिक मॉडल. उसके 3 पोस्टुलेट्स हमें डिस्कस करने हैं, उसकी लिमिटेशंस हमें डिस्कस करने हैं. Then we have to discuss about constituent of nucleus, proton, neutron, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. Then we have to discuss about nuclear binding energy. Then what is radioactive decay, उसके 3 टाइप से अल्फा डिके, गैमा डिके, बीटा डिके, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. Then what is half life period or average life period of radioactive substance, that also we have to discuss in detail. Then the nuclear force क्या होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. Then we have to discuss about nuclear reactions. तो उसमें हमें न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, चेन रिएक्शन क्या होता है, वो भी हमें डिस्कस करना है डिटेल में. So in this way this chapter is over. Now let us discuss last chapter of this physics 2 syllabus, semiconductor devices. 11th स्टैंडर्ड में आपने सेमीकंडक्टर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है. So let us start semiconductor devices. इसमें फर्स्ट पॉइंट है rectifier. So rectifier is a device which convert AC signal into DC. Okay. उसमें भी वापस 2 टाइप्स यहाँ पे हमें डिस्कस करने, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. ठीक है. उसके बाद में हमें डिस्कस करना है जीनर डायोड. तो जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर और इट इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई कैसे रहता है वो हमें डिस्कस करना है. एक्चुअली रेक्टिफायर आउटपुट इज नॉट ए यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ AC लाइन्स फ्लक्चुएशंस. बराबर. तो उसका आउटपुट, रेक्टिफायर आउटपुट रेगुलेटर करने का काम जीनर डायोड का है, तो वो करता है. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट फोटो सेल्स विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देन फोटो डायोड के बारे में हमें डिस्कस करना है. देन व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड, उसके एप्लीकेशंस. अभी दिवाली में हम LED यूज करते हैं, सो बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसके एडवांटेजेस है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम उसमें. देन आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो इसमें वापस 2 टाइप से NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर. एक्चुअली ट्रांजिस्टर यूज एज ए एम्पलीफायर और ए स्विच. कॉमन इमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर ये क्यों होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर इज 3 टर्मिनल डिवाइस. एक्चुअली हमें इनपुट को 2 और आउटपुट को 2 टर्मिनल लगते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 टर्मिनल डिवाइस होने के कारण एक टर्मिनल हम कॉमन रखते हैं. ठीक है. तो दिस कॉन्फ़िगरेशन आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. तो कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हम. आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉजिक गेट्स. Almost in every digital circuit we use logic gates. ठीक है. तो सभी डिजिटल सर्किट में लॉजिक गेट्स का यूज होता है. लॉजिक गेट्स में हम देखने वाले एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, ऐसे कई सारे गेट्स डिटेल में हम डिस्कस करने वाले. So this is about your Physics 2 syllabus. Thank you very much. Stay home, stay safe.